Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Another week, another podcast. I am back with yet another exhilarating guest. I am your host, Aliza Nakui, and I have the pleasure of having with me here Mr. Abdul Rafe, who is currently working as a financial controller in CNS Arabia. Previously, he has had the honor of working in PwC Pakistan, EY Bahrain and Pakistan, as well as Deloitte Saudi Arabia. He has yet so many aspects of his personality which we will go through here, and it is definitely important to mention that he is one of the leading members of Tabani's Literary Society. Please welcome Mr. Abdul Rafi. Hi Alize, how are you? I'm good. How are you? Alhamdulillah, and thank you so much for having me here today. So, Thank you for taking out the time. We are aware you have your flight tonight, and just before that, you're here for the podcast. anything for the institute. I have so many memories here, and that institute has played a very pivotal role in my development, in my grooming, in my success. So, anytime. I can definitely vouch for that. I think that before delving into different aspects, I would like to know why you chose CA. Yeah, that's a very good question. इसका बिल्कुल honest answer दूँ तो I wanted to do engineering, right? So one of my uncles, he came to me and he asked कि यार तुम इंजीनियरिंग करोगे तो 6 महीने तुम घर पे रहोगे, 6 महीने तुम फील्ड पर रहोगे, तो तुम्हारी लाइफ तो बहुत मैसअप हो जाएगी. रादर डू CA और समथिंग सो ताकि एक वाइट कॉलर जॉब हो, 9 to 5 जॉब हो और ज़िंदगी तुम्हारी सुकून में गुजरे. बट आई डेंट नो दैट I was falling for a trap where actually, yes, it is a 9 to 5 job, but 9 a.m. in the morning till 5 a.m. in the next morning. Yes. Acha, how are you so happy about that? Like, They made us become happy for that, you know. well, I'm sure it does have its perks. No, actually, yes, it has its perks. आप देखो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अनटिल कि आप अपने आर्टिकलशिप में हो, आप अपने ग्रूमिंग फेज में हो, आप अपने लर्निंग फेज में हो, इट हेल्प्स यू इन एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़ एंड द ट्रू पोटेंशियल दैट यू हैव. एंड ऑब्वियसली आप किसी भी चीज़ में जब तक मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं करोगे तब तक आप उसकी तमाम तर डेप्थ्स को नहीं समझ सकते, आप उसको नहीं सीख सकते. ठीक है, 9 to 5 आप अपनी करते हो बेसिक जॉब. आफ्टर दैट अगर आपको यू रियली हैव टू लर्न समथिंग बिकॉज एट दैट टाइम आपका मैनेजर भी बिजी होगा अपने काम में, आपका सीनियर भी बिजी होगा. उसके बाद व्हेन यू विल सिट विथ हिम और हर, दे विल टेल यू व्हाट दे हैव लर्न सो फार. एंड स्पेसिफिकली हमारी फील्ड जो ऑडिट की फील्ड है वो उसमें इतनी ज़्यादा टाइट डेडलाइंस होती हैं और वर्कलोड वर्क प्रेशर ऐसा होता है कि यू हैव टू डू द लेट सिटिंग्स. व्हेन यू आर जंपिंग इनटू द फील्ड यू नो दैट. सो फॉर अ सर्टेन टाइम इट्स डेफिनेटली गुड, बट येस उसको आप अपनी लाइफ का अगर एक परमानेंट पार्ट बना देंगे तो दैट विल श्योरली हैव सम इम्पैक्ट्स ऑन योर हेल्थ एज वेल. Definitely, and I want to come on to that aspect as well. कि we all are aware कि आपको late sittings करनी होती हैं, and you know these are the things that you are aware of before joining any firm or industry. Yes. लेकिन because there are so many different aspects to you, और आप पहले इस तरह के like you weren't very vocal, you weren't very confident, and that's okay. But आपने gradually अपने ऊपर काम किया, right? तो इतने सब कुछ होने के बाद like आपका major chunk of the day is going to the work, and उसके बाद भी you're motivated and you have the time enough to work on these things. How did that manage? ओके इसमें देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये होती है कि आपके पास 3 चीज़ें हैं. आपके पास जब आप एक स्टूडेंट होते हो और आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो, आर्टिकल्स कर रहे होते हो, तो एक आपकी पढ़ाई है, एक आपका काम है और एक आपकी नींद है. इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है. ना आपकी सोशल लाइफ है फ्रेंकली स्पीकिंग, ना आपकी कोई फैमिली लाइफ है. ठीक है, आप सुबह तब निकलते हो जब आपके घर वाले सो रहे होते हैं, आप रात में तब आते हो जब वो सो रहे होते हैं. तो फैमिली Is लाइफ this all year long? Yes, most of the times I guess, unless sometimes when you're off season, you get those days, you spend time with family, but most of the time it's just like that. तो अब आपके 3 एस्पेक्ट्स बचते हैं, एक आपकी पढ़ाई, एक आपका काम और तीसरा आपकी नींद. तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया ड्यूरिंग दोज डेज, दैट वाज माय स्लीप व्हिच आई शुडंट हैव हैड. सेकंड थिंग, आई विल कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मुझे अच्छे लोगों का साथ मिला, क्योंकि फर्म ज्वाइन करने के बाद मुझे जितनी पब्लिक स्पीकिंग की, डिबेट्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो शायद उससे पहले नहीं मिली थी. आई हैव टू से थैंक्स टू माई मैनेजर, स्पेसिफिकली हसान कोठारी एंड एवरीबडी एल्स. उनकी बदौलत जो है मैं ना सिर्फ यानी कराची में मैं कंपटीशन में पार्ट लेने जाता था, उससे पहले काम कर रहा होता था, वापस आके काम कंटिन्यू कर लेता था. एंड आई वेंट टू इस्लामाबाद, I went to different universities in Punjab. I went to different universities in Interior Sindh during my articleship. तो technically वो
आपके इर्द गिर्द लोगों का सपोर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वो एक एम्बिशन और पैशन कि आप उसके लिए बस नहीं कर सकते। इनिशियली जब भी आप लीव्स लेने जाएंगे फर्म में आपको नहीं मिलेंगी, सो यू हैव टू शो देम दैट हाउ मच यू आर सीरियस फॉर योर पैशन, राइट? सो दैट्स हाउ ऑल ऑफ दैट वर्कड। अच्छा, ये आपको रियलाइज कैसे हुआ कि यू हैव दिस स्पेसिफिक टैलेंट इन यू? Somewhere deep down I knew that, because since my school life I was doing this speeches and debates and all. And there's one very interesting story which I would like to share. Please. मैं अपने school life में था, तो I was like I studied from a decent school. I'll not say that that is one of the best in the towns. नाम का English medium भी था। तो I was in class 6 and there was a debate competition in this PACC auditorium, International School of Studies उसको organize करवाता था। तो वहाँ पर आई वेंट देयर, मुझे नहीं पता था कि डिबेट का टॉपिक क्या है, इसका मतलब क्या है। मेरी टीचर ने मेरी स्पीच लिखी हुई थी। आई वेंट टू द पोडियम, इट वाज अ 3-minute स्पीच। आफ्टर 30 seconds आई फॉरगॉट इट एंड आई वाज साइलेंट ऑन द पोडियम। ओके सो आफ्टर एवरी 10 seconds द ऑडियंस वाज क्लैपिंग, सो मैं कुछ बोलना शुरू करूँ, बट आई कुडंट स्पीक एनी वर्ड बिकॉज आई कुडंट रिकॉल एनीथिंग। सी, सो दैट वाज अ टाइम वेयर आई वाज वेरी मच एम्बैरेस्ड. I knew my resources. I knew that in front of me were very decent schools like Nixer, Lyceum, City, Beacon, where they have their debating coaches, and we did not have. Plus, I was not very fluent in English. I have to admit that as well. और एक कल्चर की बात भी होती है। देखें, मुझे स्पून फीडिंग करवाई जा रही थी। आप अपने टीचर के या किसी के अल्फाज ज़िंदगी में कब तक बोल सकते हो? तो आपके अल्फाज टूटे फूटे ही सही हों, लेकिन अगर आप एक दफ़ा बोलना शुरू करोगे तभी आप सीखोगे, लिखना भी बोलना भी। तो उसके बाद आई जस्ट यूज़ दैट, जो एक मेरे साथ एक मिसहैप हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ऑन माई स्पेसिफिकली ऑन माई लैंग्वेज। उर्दू में तब तक भी आई वॉज फ्लुएंट, आई वाज हैविंग सम गुड स्पीचेस, सो आई वर्कड ऑन दैट थिंग। एंड then there came a time when I won a lot of competitions in English, specifically in on the regional level, on the national level, and couple of them on international level as well. Yeah. So that was alhamdulillah sort of an achievement. And I'll tell you something, ये जब आप जैसे पब्लिक स्पीकिंग के भी ना बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, सही है? जैसे लाइक वी आर डूइंग पॉडकास्ट, दैट इज़ वन ऑफ वेरी कैजुअल फॉर्मेट्स कि यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग दैट यू वांट इन द, इट्स एन अनफिल्टर्ड टॉक। सिमिलरली देयर इज़ अ स्पीच, सिंपली आपने जो आपको एक टॉपिक दिया जाता है आप उस पर कन्वे करते हो। देयर इज़ डेक्लेमेशन, जिसमें आप एक पूरी पिक्चराइजेशन करते हो, एक मंजर निगारी करते हो, एक मंजर कशी करते हो, ऐसे कि जैसे आपको मैं उस टाइम में उस चीज़ में उस सिचुएशन उस सिनेरियो में ले जाऊँगा, एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट टू फील दैट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, राइट? तो डेक्लेमेशंस और स्पीचेस भी मैंने उर्दू में की, इंग्लिश में की, सीरियस रूम में सब की अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। अराउंड 70 or 80% of the times I was able to secure some positions and won that. There was one thing which I really loved. Okay. And that was debate. Okay. Debate, because debate is such a format. आप टूटा फूटा भी बोलो, आपके आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रेट हैं, द होल ग्राउंड इज़ योर्स। लाइक मुझे एक जैसे एक स्काई डाइविंग कोई कर रहा, ठीक है, तो एक एड्रेनलिन रश जो होता है ना, मुझे वो होता था डिबेट के बाद। यस 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 यस, लाइक सिंपल। अब एक सिंपल चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट एंड देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड लाइक क्लेम, ठीक है? एक दावा होता है और एक दलील होती है। अब मैं सिंपल सा मैं बोलूँ कि TSA जो है, इट इज़ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर CA एंड ACCA। ये सिर्फ एक दावा है, ये सिर्फ एक क्लेम है, क्योंकि कोई भी कल को उठकर ये बात कर सकता है, ठीक है? You don't have supporting evidence, कुछ भी। Supporting evidence, factual analysis, लॉजिक्स, समटाइम्स फिलोसफी, दैट डिपेंड्स कि आप किस ग्राउंड पे जाकर डिबेट कर रहे हो, सही है? अब मैं यही समझाऊँ कि ACCA का ग्लोबल लेवल पर रिजल्ट ये है, पाकिस्तान लेवल पर रिजल्ट ये है, बट TSA का रिजल्ट ये है, विच इज़ 20 times higher in this subject, 10 times higher in this subject, 5 times higher in this subject, right? Now I am putting the logics, I am presenting a factual analysis. फिर मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ कि यहाँ पर जैसे बच्चों की ग्रूमिंग पर काम किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। मैं एक अच्छा एक फिलोसॉफिकल एंगल भी दे देता हूँ, ठीक है? एक वो जो नहीं, पेरेंट्स को एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए जहाँ उसको वैल्यूज़ भी मिले, सब कुछ। तो अब जब मैं ये सारा सेट वहाँ पर डालता हूँ ना, इट्स ऑलरेडी कन्विंसिंग। यस, तो मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि मैं कोई एक ऐसा आर्ग्यूमेंट बना कर जाऊँ जिसको एंड तक कोई डिफीट ना कर पाए, रिबटल या रद्द दलील जिसको हम कहते थे ना, वो ना दे पाए। तो
it was a good experience, and Alhamdulillah, there has been no debate in my life which I haven't been able to win, Really, or maybe mashallah. second position, sometimes third, but mostly first. So I used to had that. और मैंने debates की कभी तैयारी नहीं की, ना करनी चाहिए ना करनी पड़ती है. मैं just बैठ के पेपर पे आप अपने arguments लिखते थे, और you just go and deliver that, right? Wow. And that is a lot about it. And I love the way you're so passionate speaking about it. Like you're so like जैसे आपने adrenaline mention किया तो वो नजर आ रहा है because you're so passionate towards Yes, it. yes, yes, yes. तो इतना सब कुछ जब discover हुआ तो आप articles में थे. Yes. Basically, credit goes to a person from TSA जिन्होंने ना सिर्फ मेरी बल्कि you had invited Balaj in the previous podcast. Yes. Maybe a couple of our friends will come here in near future as well. So there was a lady, Miss Nadia. She played a pivotal role in all of us. Like मेरी जब पहली proper speech थी, it was All Pakistan Declamation Competition in Sangar 2017 के end में थी, जो TSA की तरफ से थी. Okay. और मेरी तबीयत ख़राब थी. आई वॉज मेकिंग एक्सक्यूजेस. मैं डरा हुआ था, मैं नहीं जाना था. इससे पहले आपने की थी? यस, स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ. ठीक है. सीए में आने के बाद 2 साल मेरा गैप था. Okay. मैं और बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा था, जैसे हमारे स्पोर्ट्स गाला थी, दूसरी एक्टिविटीज़ थी. मैं अपनी दूसरी साइड एक्सप्लोर कर रहा था. टीएसए में आके मैंने अपनी इवेंट मैनेजमेंट, बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, जब आप इतने सारे लोगों को मैनेज कर रहे हो, ये इन स्किल्स पर काम कर रहा था. बट पब्लिक स्पीकिंग मैंने 2 साल के लिए बहुत पीछे छोड़ दी थी. शी कन्विंस मी, नहीं जाओगे तो तुम ही जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे. ठीक है, उनका ये अंदाज़ होता था. ठीक है, एंड आई रियली लव दैट. तो खैर मैं गया उस कंपटीशन में. हम 4 लोग गए थे टीएसए से, 2 तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से और 2 तबानी कॉलेज से. ठीक है. 3 पोजीशंस आई थी और एक टीम ट्रॉफी आई थी. जिस बंदे की वाहिद पोजीशन नहीं आई थी वो मैं था. No. Yes. So I was very disheartened, but at the same time I wanted to make that also as a learning opportunity for me. Very next competition जब हमने ऑल पाकिस्तान बोला, तो I was the one who got the position and we won the team trophy. We brought a very big trophy to here in this reception. मैं कम बैक हो गया फिर. कम बैक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. तो the credit goes to Miss Nadia. मैं नहीं जाना चाह रहा था, वो मुझे लेकर गई. सेटबैक हुआ, शी मोटिवेटेड मी. सर तबानी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, उनका तो सपोर्ट शुरू से था मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सिंस माई AFC. तो जब वो सपोर्ट आपके साथ होता है ना, देखो कोई भी, आप हो, मैं हूँ, या कोई भी शख्स हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहली बार में ही जो चीज़ वो चाह रहा है वो हो जाए. आवर फेलियर्स आर जस्ट दी स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स द सक्सेस. Definitely. बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ठीक है, ये कांटों भरी एक सड़क है जिसमें से हम लोगों ने चलते हुए जाना है. तो But it's not all bad. Like you it's know. not all bad. Sometimes it is and it has to be. Because Like अभी बताने में ये बहुत अच्छा लग रहा है कि Yes. you won international debate competitions and different national and regional level पे भी you won these competitions. ये बहुत, this is like something you can flaunt. yes, But जिन चीज़ों के थ्रू आप गुजरे to get there, they're also very important in your journey. मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ. कामयाब होना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती. ठीक है, उस कामयाबी को बरकरार रखना असल बात होती है. ठीक है, एंड मुझे अब भी अंदाज़ा है कि अल्लाह ताला ने, विल डिस्कस कपल ऑफ थिंग्स लेटर एज वेल, तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाओगे. मुझे स्टीव जॉब्स का एक कोट बहुत अच्छा लगता है कि आप सारे डॉट्स को आज प्रेजेंट में रहते हुए कनेक्ट नहीं कर सकते, बट लेटर ऑनवर्ड्स, ईयर्स फॉरवर्ड, जब आप देखोगे उस पिक्चर को, आप एक एक डॉट को कनेक्ट करोगे, देन यू विल नो कि व्हाट पिक्चर आई वाज बिल्डिंग. राइट. सो आई नो एट मे बी देर कम, अल्लाह ताला ने आज कामयाबी दी है हर हवाले से. कल हो सकता है एक डाउनफॉल भी आए, फिर एक बेहतर उरूज आए. दिस इज़ हाउ लाइफ विल गो. बट द पॉइंट इज़, कामयाब होना एज आई सेड इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग. उस कामयाबी को बरकरार रखना असल चीज़ है, और उसके लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि इंसान को हम्बल रहना चाहिए. दैट एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट. Nobody likes a person who is arrogant, who claims that all of my success is because of me. And by the way, I will negate a philosophy here. Maybe a lot of people don't like it, but that is how I used to think. That's my school of thoughts. There is no one in this world, not a single person, who is a self-made person. यार, आपके साथ आपके माँ बाप की दुआएं, आपके माँ बाप अपना पेट काट के आपको इतने बेहतरीन तालीमी इदारों में भेज रहे हैं. आपके अच्छे दोस्त, मुखलिस दोस्त जो आपको पंप अप कर रहे हैं, इवन गालियाँ दे रहे हैं, पढ़ ले, कुछ बन जा. ठीक है,
आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, बुरे लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं जो आपको, तो किस बेसिस पे इंसान ये क्लेम कर सकता है कि मैं एक सेल्फ मेड पर्सन हूँ? एंड यू वर जस्ट लकी इनफ कि यू हैड दैट एबिलिटी इन योर सेल्फ, यू वर सराउंडेड बाय गुड पीपल, positive people, some pushed you, some pulled you, and that's how you got there, right? Definitely. I am having so much fun in this conversation, Yes. and I feel like I can, like जैसे आपने कहा to connect the dots, अब हम थोड़ा dots connect भी Yes, करते हैं ज़रूर कि आपके articles भी चल रहे हैं, and in CA you have to do articles and you have to study alongside as well. yes. उसके साथ साथ आपके declamations भी चल रहे हैं, and then literally society. आप मुझे ये बताएं कि in the midst of all of these things दिमाग ख़राब हुआ थोड़ा सा, ऐसे लग रहा था कि बहुत स्ट्रेस है ज़िंदगी पे, एंड लाइक यू डोंट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, या फिर ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी स्टक हो गई है? I cannot tell you, yes, there have been a lot of phases. As I told you, life is not a bed of roses. मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ. देखो, चीज़ें तो मुश्किल हैं, जॉब भी है, सब कुछ है, घर बार है, पढ़ाई है, फिर इतने सारे काम हैं, फिर अपना इवेंट अलग है, आपके दोस्त का इवेंट, जब बलाश किसी इवेंट में परफॉर्म कर रहा है तो वो भी मेरी एक टेंशन बन जाती है. वी आर टुगेदर इन दैट, राइट? इवन इफ इट इज़ हिज इवेंट, एंड सेम गोस टू मी. बाय द वे, आई टेल यू समथिंग अबाउट बलाश वेरी यू जस्ट, वो और मैं एक डिबेट कॉम्पिटिशन में गए थे, आई टेल यू दिस लेटर. तो ये सब कुछ चल रहा है. द थिंग इज़ यार, अगर आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी बिलीफ है ना, आप उस चीज़ में पाँव डाल लो, ठीक है? जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट समहाउ, कमिट कर लो. ये नहीं पता व्हाट्स गोना हैपन, एंड No. पता नहीं सक्सीड Reason being, someone, I was doing the audit of Parco, there was a guy, I seriously don't remember the name. If he's watching, I said thank you so much. He gave me advice in 2018 कि बेटा, ज़िंदगी में आपकी किसी करीबी की मौत हो जाए, आप उस दुख से रिकवर कर लेते हो, आपके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ आ जाएँ, आप उससे भी ओवरकम कर लेते हो. यानी जो भी परेशानियाँ, मुश्किलात हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे ओवरकम कर लेते हो. अगर कोई अपॉर्चुनिटी सामने हो ना, तो किसी भी चीज़ के खौफ से उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना. दैट विल नॉट नॉक योर डोर अगेन इन द फ्यूचर, राइट? अल्लाह ताला की ब्लेसिंग समझेंगे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई. तो मेरे पास जब कोई अपॉर्चुनिटी आती थी ना, भले मेरे पास टाइम हो या ना हो, मुझे लग रहा है मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इतना सा भी अगर दिल से आवाज़ आती थी ना, तो आई जस्ट स्टक माई फीट इन देयर. ओके, आई डू दैट. फिर यू हैव टू डू इट समहाउ. एंड अनदर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो कोई और काम होता ना, मे बी मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाता. व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपका दिल होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए. यस, कंप्लीटली, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. So that is very important. Whatever I did, I used to love that. That's why I was able to and do that's it. why you excelled in it, क्योंकि आपका दिल था उस चीज़ में, you were passionate towards it. Yes. And whether it be education, whether it be your work, or whether it be your extracurriculars as well. Yes. And there's also, it opens, or we can discuss another very important thing here as well, about passion and profession. ठीक है. So when I was young, like you, इतना बड़ा नहीं हूँ मैं, फिर भी नहीं, आप लग भी नहीं रहे इतने बड़े. अच्छा, तो मैं ये सोचता था कि जो इंसान का पैशन हो ना, वही इंसान का प्रोफेशन होना चाहिए, ठीक है? और मेरा ये पर्सपेक्टिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम था, until I realized couple of things. Another thing before I said that, देखो हर किसी के circumstances और contextual factors अलग होते हैं. हो सकता है किसी के लिए आज भी ये बात valid हो, but at least for me, from the perspectives I have seen from different kind of people that I've worked with, that I've met, that I've even found online. Okay, मैंने ये देखा, अक्सर जब आप पैशन को प्रोफेशन बनाते हो ना, तो you have to make a lot of compromises. अच्छा. इरफान जुनेजो की मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने बहुत कम देखा उनको, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट इत्तेफाकन यही मैंने देखा, वो पैशन और प्रोफेशन पे बात कर रहे थे. दैट्स ऑल्सो समथिंग मेरी बात के साथ मुत्तफिक बात है. तो उन्होंने कहा कि अब अगर मैं एक पैशन, मेरा पैशन है वीडियोग्राफी करना, एक एड शूट करना, या कोई एक ख़ास कैंपेन चलाना, या एक ख़ास तरह की मूवी बनाना, मुझे बनानी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव टू फीड माई फैमिली विद दैट, राइट? मे बी मेरा अपना पैशन वो चीज़ ना हो, राइट? व्हेन यू हैव अ सेपरेट प्रोफेशन, ओके, एंड दैट्स अ गुड प्रोफेशन, एंड समहाउ, ठीक है, आपको उतना पैशनेट नहीं हो, बट यू लाइक डूइंग दैट, राइट? सो इन दैट वे यू विल बी एबल टू अर्न मनी फ्रॉम दैट थिंग. आपका घर उस पर बहुत अच्छे से चलेगा, एंड वट एवर टाइम यू हैव, विदाउट मेकिंग एनी कॉम्प्रोमाइजेस, यू कैन फॉलो योर पैशन, बिकॉज
जब आप अपने पैशन पे अपने घर को कंटिजेंट कर देते हो ना, तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं. सम थिंग्स, एंड आई एम नॉट necessarily talking about the moral compromises, right? Yeah, definitely. There are some like compromises, like you don't want to do that thing, man, but you have to do it, right? So passion or profession, I think, even if they are different, still you can have your life. Yeah. As a man, it is your primary responsibility to go out and feed your family, right? So feed your family, and whatever income you have, or whatever time you have, whatever the lesser resources you have, make the full out of it, right? This is actually a very different perspective to me as well, because मुझे भी आई थिंक यही लगता था कि आपको करना वही चाहिए जो आप इंजॉय करते हैं, राइट? बट देन दिस ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि जो आपने बात कही कि आपकी फैमिली कंटेंजेंट हो उस पर, एंड ऐसा भी तो हो सकता है कि यू आर नॉट गेटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़, एंड जो आपका पैशन हो वो अल्टीमेटली फिर ना रहे, बिकॉज अब आपको वो करने को ही नहीं मिल रही है, वो आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे, Exactly. एंड आपका ऑटोमेटिकली उससे इंटरेस्ट खत्म हो गया. दिस इज एक्चुअली अ वेरी वाइज थिंग टू से, Yes, एंड दैट इज yes, व्हाट यू इम्प्लीमेंटेड yes. इन योर लाइफ. Yes, yes. वंडरफुल. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा, अब थोड़ा सा एकेडमिकली मुझे बताएं कि Sure. आपने ड्यूरिंग योर ईयर्स इन दबानीज यू फॉर्म द लिटरेरी सोसाइटी, यू योर सेल्फ वर डूइंग डिबेट्स, एंड एक्सपो में भी आप काफ़ी एक्टिव होते थे, राइट? You don't want me to share that Yes, story, right? yes. I want. Okay. Yes, yes, yes. तो मुझे ये बताएं कि ड्यूरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपने ये सोचा था कि वेयर लाइफ इज़ गोइंग टू टेक यू, बिकॉज यू हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट फर्म्स इन डिफरेंट रीजन्स एज वेल. तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, हम सिर्फ मेहनत करके हम अपने गोल में ये रख रहे होते हैं कि एटलीस्ट पेपर्स हमारे निकलें, हम प्रोग्रेस करें. बट डिड यू इमेजिन दैट यू वुड हैव द एक्सपोजर ऑफ सो मेनी डिफरेंट एथिक्स एंड सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स एंड वैल्यूज़? I have to be honest. Somehow I knew कि कुछ तो होगा. ओके. ऐसे तो नहीं इस दुनिया में आए, but no, I haven't that. And I'll tell you something. See, मेरी ना एक नेचर का एक हिस्सा था. मैं, as you said and you know me as well, I was an introvert person. Like हर किसी के सामने आप एक्सप्रेसिव हो जाओ या सब अपने सारी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स खोल लो, so there is no point in being you, right? As per the situation, you have to behave like that. There's an aspect of my personality, maybe you don't know, okay, there is one thing which is my passion, even more than this public speaking and everything. Achha. That is traveling and exploring. Ooh, okay. Now, when I was a kid, I went to my hometown, and I was a kid, I'm telling this before anyone start laughing, especially my friends. तो अब मैं छोटा सा था, तो मैं पहाड़ों से ना बातें करता था, और मुझे लगता था they used to answer me back without being judgmental or something. I was a kid. So that was the first time I found my love in mountains and in the And wilderness. how old were you then? Maybe 11, 12, something like Wow. that, right? So when I was, when my college was ending, okay, that was the first time I packed my bag. I didn't have proper money. Economy की ट्रेन की टिकट बुक करवाई, घर वालों को नाराज़ करते हुए, मान गए थे बाद में. I just went to Islamabad to ठीक my है. uncle, and just to explore, right? Even आप कराची से निकलो, डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करना, पहाड़ों के दरमियान रहना, नेचर के दरमियान रहना, एंड दैट वाज जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मुझे जब मौका मिलता, आर्टिकल्स के दौरान, पढ़ाई के दौरान, डिबेट्स के दौरान भी, मैं हर 6 महीने बाद 5-10 दिन के लिए निकल जाता था. ठीक है, आई टेल यू व्हाई, एंड दैट्स अ वेरी वाइज थिंग. दैट्स द वन ऑफ द कंक्लूजन ऑफ माई लाइफ. आप 100 किताबें पढ़कर इतना कुछ नहीं जान सकते जितना अगर आप एक शख्स के साथ बैठकर उसको पढ़ लो ना, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के तजुर्बात, उसने ज़िंदगी में कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितनी मुश्किलात देखी होंगी, कितने अच्छे वक्त देखे होंगे, अगर आप उससे बात कर सकते हो ना, एक बिल्कुल एक कम्प्लीटली स्ट्रेंजर से. मैंने बहुत सारे ट्रैवल्स जो हैं वो अकेले किए हैं, तो जस्ट दोस्त बना लेना, कुछ लोग अच्छे होते थे, कुछ लोग बुरे निकलते थे, बट देन एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ द एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ, राइट? सो जो आप किसी शख्स को पढ़ कर उससे सीख सकते हो ना, वो आपको किताबों में कभी नहीं मिलेगा. So that is one of the thing that was framing me through all those years, right? And yes, and I believed in miracles. So Okay. वो जो आपने कहा ना with the flow, तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या होगा. मैं बहुत आगे की कभी नहीं सोची. मुझे नहीं पता मैं अगले साल कहाँ आऊँगा. मुझे ये भी नहीं पता कि साउदाइजेशन की वजह से मुझे निकाल कर पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा. We hope not. No, I'm just kidding. But you have to go with the flow. And whenever in life there is a choice, अगर मुझे choice मिली है कि मैं वाइजली किसी चीज़ के बारे में सोच सकूं
या दिमाग और दिल के दरमियान जंग हो तो मैंने हमेशा दिल की बात सुनी है, ठीक है। तो इन द शॉर्ट रन तो आप जो है वो नुकसान उठाते हो, बट इन द लॉन्गर रन यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल, राइट। सो आई जस्ट ऑलवेज गो विद द फ्लो। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे आपसे बात करके अंदाज़ा हो रहा है वो ये है कि यू आर सो इन लिंक विद हु यू आर यस। एंड यू आर सो वेल अवेयर ऑफ योर सेल्फ। जो आपने दिल की बात की, पैशन की बात की, आई फील लाइक आप अपने आप से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि आप जो भी करते हैं उसमें अल्टीमेटली देर इज़ अ यू एलिमेंट इन इट। आपने डिफरेंट फर्म्स एक्सप्लोर की, बी एट बहरीन, बी एट सऊदी अरेबिया, बिकॉज यू हैड दैट पैशन ऑफ ट्रैवलिंग इन यू। आपने डिफरेंट एक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जीते बिकॉज यू हैड दैट इंटरेस्ट। तो आई फील लाइक बिकॉज यू आर सो वेल अवेयर, बिकॉज यू न्यू हु यू आर, दैट इज़ वाई यू आर एबल टू एक्सेल इन योर एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। तो ये एक बहुत की एलिमेंट है कि हमें पहले अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं एंड व्हाट गुड वी कैन प्रोवाइड, बी इट एकेडमिक्स और बी इट प्रोफेशनल्स। I'll enhance even your wordings. More than knowing yourself, it is important to know who your creator is and having belief यानी एक पक्का ईमान और तवक्कुल on him, right? Because when you know who your creator is and you know his possibilities, the endless possibilities, only then you can have belief on yourself. बिकॉज अगर हज़रत अली जैसी शख्सियत ये कह रही है कि मैंने खुदा को अपने इरादों में नाकामी से पहचाना, तो आप और मैं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू नो योर क्रिएटर कि जो वो चाहेगा अल्टीमेटली होगा वही। दैट्स हाउ यू रियलाइज यूर पॉसिबिलिटीज़ कि उसे भी आपने पैदा किया और उसने अपनी बहुत सारी सलाहियत आपको दी हैं, राइट। सो दैट्स आई थिंक योर फेथ इन योर सेल्फ, योर फेथ इन योर क्रिएटर, योर द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली एंड योर loved ones. This is what shapes you. These are all the ingredients for a better and a successful life. Yes. So because you have traveled so much, so I thought it'd be wise to ask about different cultures and different work ethics that you explored, right? तो पाकिस्तान में भी आपने काम किया and then you had the honor of working abroad as well. Yes. तो ऐसी क्या practices या ऐसी क्या trainings जो पाकिस्तान में हो रही थी and you felt like you performed a lot better when you went abroad? ऐसे work ethics आपको देखने को मिले, ऐसे cultures आपने explore किए, या वहाँ पे क्या environment है काम करने का overall, and what made you perform better? आप में क्या improvements आई and what are the things that you learned and came back with जब आप यहाँ पे दोबारा काम करने आए? तो a little bit about that. Okay. So obviously I had the experience of working in audit here and then in abroad. दो चार तो वर्क रिलेटेड डिफरेंसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन यू वर्क इन पाकिस्तान, यू आर अ टीम ऑफ 4 to 5 people minimum for a decent sized client, okay, and you go to that client for 1 or 1.5 months at least. ठीक है. When you go abroad as an audit senior, you are alone in the field and you have a week to complete the client. So just imagine आप 5 रिसोर्सेज से एक रिसोर्स पे आ जाते हो, प्लस आप 1-1.5 महीने 2 महीने भी हम कुछ क्लाइंट्स पे लगाते थे, उससे आप 1 हफ्ते पर आ जाते हो, ठीक है. सीज़न में ऑन एन एवरेज यहाँ पे 4-5-6 क्लाइंट्स आप करते हो, वो भी एक टीम के साथ, ठीक है. वहाँ पर आप 14-15 क्लाइंट्स भी कर रहे होते हो एक सीज़न में ऑन ऑल अलोन. So there are always 2 sides to the work culture. Number 1 is the work pressure. Number 2 is the toxicity in the culture. ठीक है. वर्क प्रेशर के लिए हमें बहुत प्रोन बनाया जाता है पाकिस्तान में, ठीक है. हम उसको हैंडल करते हैं पाकिस्तान के हिसाब से, हम बहुत अच्छा ऑडिट कर रहे होते हैं, ठीक है. ठीक है. टॉक्सिसिटी यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं होती. एंड आई थिंक आई हैव टू से दिस, मे बी इफ समवन इज लिसनिंग एंड ही इम्प्रूव्स दिस, आई वुड लव दैट. I worked with Filipinos, I worked with Saudis, I worked with Emiratis, I worked with Bahrainis, I worked with Britishers, I worked with someone who's from US, okay, from Australia, a lot of different cultures, India, Sri Lanka, right? ठीक है. They have been my seniors and subordinates. What I never liked was working with some Pakistanis. Really? Yes, that has always been in my 2 or 3 offices that I've worked with, was a nightmare. Because we have not been able to learn the work ethics, how you should approach your teammates, how you should support. When I see people from different cultures, they always uplift their people, frankly speaking. एक कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा था बहरीन में. there was a Pakistani manager. He had an opportunity to hire 900 labor from Pakistan, but he didn't hire and supervise something. He said Pakistanis आएंगे तो मेरी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी. And then another person hired from India, Bangladesh and all.
So you see, there are some people who actually do that as well. There are good people. See, I'm not saying that. But what I want is, see, being a Pakistani, help your fellow Pakistanis. And this is something a lot of my friends, they will agree with me on that. There are good people. Most of the people, they lack this work ethics and all. And you have to support your community, right? This was one thing. सो अबाउट दिस वर्क कल्चर, हमारा प्रोफेशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर्ड वर्क एनवायरनमेंट होता है, लाइक इफ़ यू हैव टू डू अ क्लाइंट इन 1 वीक और 2 वीक. सो ऑलरेडी काम के हवाले से हम इतना परेशान होते हैं कि अगर आप अपनी मेंटल टॉक्सिसिटीज़ को अपने पास रख सकें और रादर देन दैट हमें सपोर्ट कर सकें, असेस कर सकें, पैट ऑन अ बैक, दैट कैन हेल्प अस अचीविंग आवर डेडलाइंस मोर एफिशिएंटली रादर देन जस्ट यू वांट अ पर्सन टू कोलैप्स एंड यू वांट टू सी इट एज एन एंटरटेनमेंट फॉर योरसेल्फ. So that is also one of the decisions why I decided to leave the audit side, and why most of the people decide to leave audit side. And that's why I was scared what is going to happen next. I wasn't even qualified. So when I got these opportunities, I got a chance to work in EY Romania. I had the EU work permit. I rejected to work in Saudi, but then I had to face these nightmares. And that's why I switched to industry recently. So yes. Okay. Yes. This conversation has taken a different turn. Yeah. Yeah, but We can I keep wasn't it light. expecting it. You can keep it light. Just imagine, na, in the month of Ramadan, you have to work from 9:30 or 10 in the morning till 5 o'clock. Then you have an hour to do iftar. Then you have 2 hours to do tarawih and everything. And after tarawih, 9:30 or 10, you have to be back at the office and work until 3 o'clock in the morning. You are not having a proper diet, you are dehydrating, people are collapsing, but you don't care because you have to give your deliverables in time. So there comes a time when these deliverables become more important than the people. So what is the whole point of having that? Definitely. Right. And even amongst all of these things, your ego is so big fat that you cannot even appreciate your teammates. And what's the point? There At are these some- moments, you wonder that what's the point of actually doing it? What's the point of making it this far? Exactly. And there are good people whose team also achieve results. So it is proven. If you will just change your attitude, you can do wonders, man. Yeah. So that's... अच्छा, apart from that, मुझे ये बताएं कि I have interviewed a lot of different people and उनको भी बहुत setbacks होते थे, उनके papers नहीं pass होते थे, and they did go through a depressing phase in their life. Yes. But when I look at them today, they have made an incredible mark in their life. They're doing phenomenal. They are working either in the Big Four, either in industries, and they are very well off, mashallah. Yes. So one setback or a few setbacks do not define your life. No, they're not going to define your life. Right? So I want you to shed light onto that as well, because you had faced something similar and mashallah you are doing wonders in your life. Alhamdulillah. So a little motivation for our students and everybody who's watching कि भले paper ही ना हो, कोई और setback हो, it does not limit you, it does not define you, and it does not label you. There are so many different aspects to it, and कभी कभी आपकी खुद की learning के लिए होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान होते हैं, a lot of aspects. तो आपने इस चीज़ को कैसे tackle किया? And amongst that, I want you to advise the students who may be going through the similar phase in their lives. Okay. So, like first of all, the thing is कि CA में हम सब दोस्त एक दूसरे को मोटिवेट करते थे. 3 पेपर्स दिए, एक पास हो जाए ना, we used to celebrate that. Right? Okay. This is CA हो, ACC हो. ACC a bit easier, but not very much easier. But CA में तो I think they have some problem with the kids. So हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, हम समझाते थे, this is a profession, man. इसमें फेल होना कॉमन है, पास होना मुश्किल है. पास होना इज़ अ मिरेकल. सो 2-3 में से पास हो गई या एक पास हो गया, वी यूज्ड टू सेलिब्रेट दैट. छोटी छोटी खुशियाँ. That's how we went along the way. Another thing you asked me, like I was so involved in all the extracurriculars, co-curriculars. See, I suffered as well. Like for example, अब मैं स्पोर्ट्स गाला करवा रहा था मॉड्यूल डी में, जब मेरे आखिरी 3 कैफ के पेपर्स रहते थे. सो आई ओनली गॉट 20 to 25 days टू स्टडी. वो भी मैं किसी से रजिस्टर मंगवाता था. मैंने इस तरह पढ़ा, मैं कभी भी प्रॉपरली मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल सका. Classes नहीं ली थी. नहीं ले सका था उन मॉड्यूल्स में. Okay. ठीक है. और उसके बाद भी फिर बहुत ही मुश्किल थी. फाइनल्स में भी क्लासेस कुछ ली, कुछ नहीं ली. तो अब मैंने मैंने कॉस्टिंग क्लियर कर लिया, FAR2 कर लिया, बट मेरा ऑडिट रुक गया. 47 समथिंग इस पर रुक गया. ठीक है. सो आई ज्वाइन EY. मेरा EY में KPMG में Deloitte में तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज हायर्ड एंड आई चोज टू गो विद EY. आई लव EY. ओके. नो आई वर्क इन PwC and Deloitte as well. तो वहाँ हो गया. But I had to work as unregistered person for 6 months, and my salary was 1,130 only. Yes.
Yes, 1,130 rupees only. And even when I cleared that paper in March, my salary was 10,000. चलिए So वो तो yes, वो तो सुन के to some हजम हो yes, जाता है और इसी 10,000. से सारे बच्चों को अपनी एजुकेशन सब कुछ चलानी होती है. सो आई टेल यू ऑल्सो वन थिंग. सो उस 10,000 के बाद मेरी लाइफ में जो भी आया ना, आई काउंट दैट एज प्लस. जब तक अल्लाह ने दिया है, इट्स हिज ब्लेसिंग, मैन विल टेक इट, इट्स हिज राइट. सही है. तो दैट वॉज द फेस वी हैड टू गो थ्रू, राइट. देन फिर कोविड आया. कोविड की वजह से मेरी एक अटैम्प्ट ज़ाया हुई. 6 महीने मैं लेट क्वालिफाई होना था. देयर वॉज अ टाइम, क्योंकि मैं इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, मैं फिर भी पढ़ाई कर लेता था मैं. और ऑडिट का जैसे मैंने आपको समझाया कि प्रेशर कितना होता था, तो मैं पेपर एक एक दो दो करके दे रहा था अपने फाइनल्स के. ठीक है. दे वर गेटिंग क्लियर्ड until a time came कि I was left with only one paper, that was corporate law. That was a nightmare for me. See, क्योंकि जिस तरह का वर्क इन्वायरमेंट बन चुका था, उसके साथ उसको प्रॉपरली पढ़ना, कितनी मोटी लॉ की किताब, ठीक है, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो EY पाकिस्तान में मैं था, मैंने इसको देने की कोशिश की. उस टाइम पे नहीं हो पाया. उसके साथ मैंने एक और पेपर दिया था, वो निकल गया. दैन सिर्फ ये पेपर बचा. मैं PwC में था, मैंने देने की कोशिश की, तो 44-45 पे आकर वो रुक गया. ठीक है. एंड दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई हैव टू ट्रैवल फॉर Saudi Arabia. So I just reached Saudi and my attempt came, and I asked the permission to go back to Pakistan and give my paper. I was denied. Okay. Another 6 months delayed in my qualification. Then मैं काम में इतना बिजी हो गया, पढ़ाई का वो सारी चीज़ें जहन से निकलने लग गई. एंड दैट इज़ नॉट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज़ नॉट ऑडिट, दैट इज़ नॉट समथिंग यू आर डूइंग डेली बेसिस. आप सऊदी में और पाकिस्तान का कॉर्पोरेट लॉ कैसे आप पढ़ सकते हो. ठीक है. अब अगर मैं इसके लिए प्रॉपर लीव्स नहीं लेता तो मैं कभी उस पेपर को नहीं दे पाता. ठीक है. आई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड मी अ चांस टू हज लास्ट ईयर. आई डोंट नो, आई प्रेड के किसी तरह मुझे मौका मिल जाए, लीव्स मिल जाए, मैं पढ़ सकूँ. मिरेकुलसली इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल. सीज़न के करीब में आके मैंने ऑलमोस्ट 3 हफ्ते की लीव्स ली, विच वॉज नियरली इम्पॉसिबल इन मिडल ईस्ट इन एनी फॉर्म दैट यू कुड टेक. वो लीव्स मुझे मिली, पाकिस्तान आया, जैसे तैसे करके पढ़ा दिया, एंड आई क्वालिफाइड. And you can't imagine, there are a lot of people who are behind your struggle, who are with you. The day when I qualified, I was in a hotel, I was doing audit of a hotel in Riyadh. So, and I slept at 3:30. I woke up at Fajr, and there came a message from my cap: you have cleared the chartered accountancy. And oh, I literally jumped out of the bed. I'm not sure if you have seen that movie 12 Fail or not, just see it. Like the man vows to the ground. I was like that. I was so happy. I offered 2 rakat nafil, but there was no one with me with whom I can share my happiness. And then again 5 मिनट बाद मैं लैपटॉप पे लग के अपना काम दोबारा से करने लग गया. ठीक है. So there are tough days in your life. There are difficult days in your life which are only there to make you up. आपके failures आपके successes से ज़्यादा आपको build कर रहे होते हैं for the upcoming years. So that is something you have to learn. Have the positive attitude, keep going, and inshallah ta'ala whatever you want, you will have it. Inshallah. Thank you so much, Abdul Rafid. This has been an incredible conversation. मतलब हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली, and the way we went, time कभी नहीं पता चला, and you were just so invested into the whole podcast, into everything we discussed, and we thank you so much for your time. This has been lovely. You're welcome. Thank you so much for having me again. Thank you for being here. And it was lovely catching up after all these years. Thank you so much. That is all for today, guys. I will catch you guys in yet another exciting episode. Goodbye for now.